السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قاری حلیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ آج کا عنوان ہے ایک مدرسے کے بچے کا دلچسپ واقعہ۔ چلیے دوستو، بیان شروع کرتے ہیں۔ علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، مدرسہ عربیہ دارالعلوم اسلامی مشن کا تبلیغی، اصلاحی، اخلاقی کل سے جلسہ شروع ہے۔ اکابر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ سب کو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرا رہے ہیں۔ خدا جانے کتنی مدت پہلے اسی درسگاہ میں، اسی جلسے میں علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مولانا آزاد جب یہیں ہوتے تھے تو اس وقت حاضری ہوئی تھی۔ اس کے بعد حاضری تو کئی مرتبہ ہوئی۔ افسوس ہوتا تھا کہ اتنا بڑا چمن ویران پڑا۔ ارے اگر کسی کا مکان ویران ہو جائے تو پڑوسیوں کو افسوس ہے، کوٹھی ویران ہو جائے تو ہمسایوں کو افسوس ہے، بنگلہ سنسان ہو جائے اہل شہر کو افسوس ہے، خدا کے دین کا درس اور دارالعلوم ویران ہو جائے کسی کو افسوس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اس زمین کے مقدر جاگے، دو عالم دین نہایت ہی فصیح بلیغ شیخ الحدیث اور مفتی کے مقام کے مولانا شفیق الرحمان درخواستی مدذل، مولانا حبیب الرحمان درخواستی دونوں حضرات کو اللہ پاک نے یہاں بھیج دیا کہ باولپور والوں، تم نے بڑے بڑے اسکول قائم کیے ہیں، تم نے معصوم بچوں اصل نقصان پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ مسلمان کی عادت ہے یہ ابتدا پہ غور نہیں کرتا، انجام کی دم پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ماں ہے نا، ماں، ہم نے غلطی یہاں سے کی، یہ وہ کالج، یہ یونیورسٹی ہے، یہ وہ درسگاہ ہے جس سے نبی بھی بے نیاز نہیں۔ کتب اس گود میں پلتا ہے، ابدال اس گود میں پلتا ہے، غوث اس گود میں پلتا ہے۔ بابا فرید الدین سکرگنج رحمت اللہ علیہ کی تعریف ان کی والدہ کے سامنے لوگوں نے بہت کی ہنس کے کہنے لگی، ٹھیک ہے میرے بیٹے کی تم تعریف تو کر رہے ہو، پر کبھی مجھ سے بھی پوچھو نا، 2.5 سال میں نے دودھ پلایا، قسم لے لو ایک دن بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ تم نے اس ماں کا انتظام نہ کیا۔ شاہ فخر الدین شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا داماد، وہ بیٹی یہی فوت ہو گئی، خراسان چلے گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی ہو گئی اور اسے شادی کر کے پانی پت لے آئے، اور شاہ شرف الدین بولی شاہ قلندر پیدا ہوئے تو بچہ اتنا روتا تھا بولی شاہ قلندر ماں کی گود میں کہ باپ کے بھی ماں کے بھی ناک میں دم آ گیا۔ مسجد میں ایک بزرگ آئے، چمڑے کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ بولی شاہ قلندر کے باپ نے کہا، حضرت ہمارے یہاں ایک اللہ نے بچہ دیا ہے، پر خوشی تو بڑی ہوئی تھی پر ناک میں دم آ گیا، رات دن چپ ہی نہیں کرتا، بڑا روتا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا بچے کو میرے پاس لے آؤ، یہ اٹھا کر لے گئے تو ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اس اللہ والے نے، ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اس اللہ والے نے، بچہ خاموش۔ شاہ فخر الدین کہنے لگے، جی حضرت جی اگر مہربانی کرو، اب تو یہ چپ ہو گیا، اگر پھر کبھی رو پڑا تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے، یہ گر مجھے ہی بتا دو، آپ نے کیا پڑھا ہے مجھے بتا دو، تاکہ اگر یہ پھر رو پڑا تو میں آپ کو کہاں سے لاؤں گا۔ فرمایا بھائی کوئی نئی چیز نہیں پڑھی، اس کی اماں قرآن کریم کی حافظ ہے، وہ اس کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی رہی۔ بچے کی روح کا اور قرآن کے نور کا اتنا جوڑ ہو گیا، اتنا تعلق ہو گیا، اتنی وابستگی پیدا ہو گئی کہ اب ماں جب چھلے میں پڑ گئی، پلیت ہو گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا اور ناشی کا نشہ ٹوٹا، آدھی کی عادت ٹوٹی، اور روئے نہ تو کیا کرے، میں نے ایک آیت اس کان میں پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، ارے اس کو نشہ مل گیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ کبھی وہ مائیں ہوتی تھی جو گود میں لے کر قرآن کی تلاوت
तो बच्चा बीमार हो जाता, खाती माँ बीमार बच्चा। अगर अम्मा अचार खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता है, अगर अम्मा गुड़ शक्कर खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता है। अरे खाया माँ ने, बीमार बच्चा। तो सारी दुनिया के तबीब और डॉक्टर कहते हैं कि दूध के साथ सुराख करके वो गर्म या तुरस जरासीम बच्चे के पेट में चले जाते हैं, जिसको जाकर के बच्चे को बीमार कर देते हैं। लोगों, अचार की तुलसी बच्चे के पेट में जा सकती है, गुड़ शक्कर की हरारत जा सकती है, और बताऊं की गर्मी जा सकती है, मसूर की दाल की शिद्दत गर्मी जा सकती है। अगर यही माँ कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाए, खुदा की कसम कुरान का नूर नहीं जाएगा। हमने अल्लाह के कुरान को मदरसों में और मस्जिदों में कैद कर दिया, और माँ ने अजमत उठाई कुरान की। एक बच्चा माँ का जब स्कूल जाता है, सुबह को उठकर पानी गर्म करती है, उसे नहाती है, मिंजन इस्तेमाल कराती है, धुली हुई वर्दी पहनाती है, फिर सुरमा, स्याही, तेल, कंघी सब कुछ पूरा करके बगल में बस्ता देती है। और वो बच्चा बड़ा चालाक हो जाता है, अंग्रेज की तरफ चला ना, यूं मुंह करके कहता, अम्मी पेंसिल भी ले ली है, स्याही की पुड़िया भी लेनी है, कापी भी खत्म हो गई, मास्टर भी चंदा मांग रहा था। 2-4 रुपए मारे बगैर जाता नहीं। और इसी माँ का जो बच्चा कुरान पढ़ने जाए और वो बराबर में खड़ा होके कह देना, जब वो स्कूल वाले बच्चे को नहला रही है, अम्मी मेरा भी मुंह धो दे, मैं मस्जिद में जाऊंगा, अखिमाल मसीह की टूटी के धोगी नहीं। आखिर मसीह की टूटी कहाँ नहीं खड़ी, वो किस वास्ते? ईमानदारी से बताओ, इस बच्चे का जहन कुरान से नफरत नहीं खाएगा? स्कूल पढ़ने वाले को पैसे मिल रहे, स्कूल वाले बच्चे के 10 जोड़े जूतियों के, 10 जोड़े कपड़ों के, और कुरान पढ़ने वाले बच्चे के पास सारे साल जूती नहीं। इस माँ को कभी शर्म नहीं आई? अल्लाह पाक का कलाम पढ़ने वाला, मुस्तफा करीम का लाया हुआ कुरान पढ़ने वाला नंगे पांव फिर रहा है। एक दिन हमारे घर में हुआ, एक बच्चा स्कूल जाता था, उसने यही हाल बनाया और 5 रुपए अम्मा से मारे। तो छोटा बच्चा भी है, हाफिज हो गया, वो कहने लगा चलो मुझे 1 रुपया तो दे दो। मेरी घरवाली कहने लगी तू कौन सा स्कूल जाएगा, मस्जिद में जाएगा, चला जा। तो कहने लगा यूं मुंह बढ़ा के, अम्मी आज पता चला स्कूल वालों को पैसे मिलते हैं, कुरान वालों को धक्के मिलते हैं। खुदा की कसम बावजूद बैठा हूँ, स्कूल वाले बच्चे को मैंने उसी दिन रोक दिया, बंद कर दिया उसी वक्त। इब्तदान ज़हन पर गंदगी है कुरान करीम की अजमत की तरफ से हमारे दिमाग में। अगर हम इन बच्चों को ये बताएं और सिखाएं और इनके ज़हन पर ये असरअंदाजी करें कि कुरान खुदा का कलाम है, और खुदा कहता लोगों बेवारसा कलाम नहीं, फरमाया तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। कोई अमेरिका वालों का कलाम होगा, कोई रूस वालों की जुबान होगी, कोई बरतानिया वालों का की जुबान होगी, मैं खुदावंद करीम का कलाम हूं। लोगों तुमने मेरा अदब करना है। फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। और लोगों मैं वो मुकद्दस कलाम हूँ, वो मैं मालिक कायनात का कलाम हूँ, मुझे बगैर वुज़ू हाथ लगाना जायज़ नहीं, मेरा तकद्दुस मजरूह ना करो। मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज हमारी तवज्जो नहीं, बड़े बड़े सरमायादारों के बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, जिम्मेदारों के बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, डॉक्टरों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, अफसरों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, बल्कि आगे बढ़कर के कहूं पीरों फकीरों मौलवियों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती। और कौन सा कुरान करीम, मेरे नबी तेरे नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, चांद सूरज सितारों के नबी, समंदर के कतरे कतरे का नबी, जमीन के जर्रे जर्रे का नबी, पत्थर के एक एक कंकर का नबी, दरख्त के एक एक पत्ते का नबी, फूल की खुशियों का नबी, और मालिक के कायनात की कसम नबियों के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते।
کی, عملی بھی بغاوت کی, قولی بھی بغاوت کی. میں خدا کی طاقت کمزور نہیں ہو گئی, میں وہ خدا ہوں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. شام کو سوئے آدمی, بڑے بڑے خوبصورت آدمی, بڑی بڑی حسینہ عورتیں, صبح کو اٹھے کتے بندر بن گئے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری, قوم کے جگر پھٹ گئے. فرمایا میں خدا کی طاقت کو نہ للکارو, میں وہ خدا ہوں. واللہ عزیز ذو انتقام. میں پکڑنے پہ آؤں, چھڑانے والا کوئی ہے ہی نہیں. کون چھڑا سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے, کس کی مجال ہے کہ اس خالق کی زمین و آسمان کے سامنے دم مارے. عرض یہ کر رہا تھا, جس قرآن کو اللہ پاک کی زبان نے ادا فرمایا, جس قرآن کریم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے اور 23 برس اس طرح سے کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی کہ قدم مبارک ورم کر جاتے تھے. جس قرآن کو جبریل امین کی زبان نے تلاوت کیا, جس قرآن کو 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کیا, جس قرآن کو سیدنا حسین نے نیزے کی نوک پہ پڑھا, جس قرآن کو غوثوں نے, قطبوں نے, ابدالوں نے, اولیاء کرام نے, علماء نے ساری زندگی جس قرآن کی تلاوت کی, تو اس قرآن کریم کو مردوں کے لیے رکھتا ہے. انصاف کرو, ظالم نہ بنو. سنت زندوں کے لیے, چاندی زندوں کے لیے, کار موٹر سکوٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے, کوٹھی بنگلہ زندوں کے لیے, تخت و تاج زندوں کے لیے, حسن و جمال زندوں کے لیے, باغ و بہار زندوں کے لیے. ظالمو, خدا کا قرآن مردوں کے لیے. جب کوئی تمہارے یہاں مرے گا, قرآن کا داخلہ کھلے گا, وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے. 80 سال کی نمازیں 1 گھنٹے کے قرآن میں ختم ہو جائیں گی. 80 سال کی بدماشی, بدکاری, جھوٹ, حرام خوری کیسے 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی؟ اور وہ بھی میں کسی پر الزام نہیں لگاتا. اکثر مولوی ان بچوں کو اس وقت لے جاتے ہیں جو پہلا سپارہ پڑھتے ہیں اور انگلی پھیرتے 28ویں پہ. ساری عمر جنہوں نے قرآن نہیں سنا, تیسرے دن کل خانی کے موقع پر چاروں طرف کی مولوی, قاری, حافظ اکٹھے کر لیے. پھر مرنے والے کا بیٹا درمیان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے, او مولانا, او قاری صاحب, آج تو اتنا قرآن پڑھو, آج تو اتنا قرآن پڑھو, میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا. داخلہ تو ملے گا نہیں, آخر جی آسے پاسے کر کے ٹھوک چھوڑو, کسے پاسے کر کے. ساری عمر جس نے قرآن کی درسگاہ میں قدم نہیں رکھا, سارا دن گھر میں کنجریوں کے گانے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو, ان حالات سے پناہ مانگو, اس معاشرے سے پناہ مانگو. لوگ اتنے بگڑ جائیں گے, صبح کو آدمی مومن ہوگا, شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگو جنازہ کوٹھی سے نکلے گا, جنازہ بنگلے سے نکلے گا, جنازہ شاہی محل سے نکلے گا, جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا, جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلے گا. حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں. فرمایا او لوگو میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا, قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے, کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں
बीमारी, VCR की बीमारी। बड़े बड़े हाजियों को देखो ना, हाजी साहब आपके यहाँ VCR, अरे क्या करें बच्चों का मामला है ना जी, बच्चे। ये ठीक है, अगर ये सारे बच्चे बदमाश बन गए फिर तेरी दाढ़ी का क्या बनेगा, तेरे हज का क्या बनेगा। जिन आंखों से बैतुल्लाह का दीदार किया, जिन आंखों से गुंबद खिदरा का दीदार किया, जिन आंखों से मदीने की गलियों का दीदार किया, अब उन आंखों से गैर औरतों को न देखा कर तौहीन होगी। शर्म करो, कुछ गैरत को हाथ मारो। क्या बना दिया मुल्क का हम लोगों ने। 80 साल का बुढ़ा हो ना, 80 साल का बुढ़ा बस में कदम रखते ही उस्ताद जी कोई रौनक का कोई नहीं, टेप शेप कोई नहीं। कब्र की तैयारी हो रही है, कब्र विच लत्ता ने सामने मौत है ते अजन भी कंजरियां दे गाने दा आदि बना खड़े। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साथ अक़दस है, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ है। औलादो सिद्दीक की क्या बात करूं, सिद्दीक वो जवान है जिसने नबी की पहली आवाज पे लब्बैक कहा, नबी के ऐलान पर गर्दन झुका दी, नबी का दामन पकड़ा, नबी का लड़ पड़ा, हुजूर की संगत इख्तियार की, ऐसा साथ गया, ऐसा साथ गया, आज तक वापिस नहीं आया। ऐसा हो, यार हो तो ऐसा हो, यार हो तो ऐसा हो। तो कभी कुछ तो सोचा करो। नबी पाक सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल, 52 साल उम्र मुबारक है। घर में एक घर वाली है और दरवाजे पे 4 बेटियां हैं। कौन बेटी देगा ऐसे मौके में। इतनी उम्र हो, घरवाली भी एक मौजूद हो, 4 जवान बेटियां हो। अबू बकर ने अपनी 6 बरस की लख्त जिगर को उठाकर इमामुल अंबिया की झोली में डाल दिया। और मैं तो लोगों से कहा करता हूं कि अगर तेरे दरवाजे पे शादी के लिए गवर्नर आ जाए तो मोहल्ले में धूम मच जाए, अगर सदर आ जाए मुल्क में धूम मच जाए। और कम से कम ये तो देखा कर कि दरवाजा सिद्दीक का है और दुल्हा इमामुल अंबिया है। तेरी घोष के नजर तो पै गई, बूहे के नजर नहीं पैनी। दर सिद्दीक का है, घोट काली कमली वाला है। तेरे बूहे ते इमामुल अंबिया घोट बन के गया खड़े, इन दरवाजे की तौहीन ना कर। एक घोट नाराज थी वैसे तेरा बेड़ा गर्क हो जाता। तेरे को रिश्तेदारा दी तौहीन नाल कौर लगती है, इमामुल अंबिया को नहीं लगती। कौन सा अबू बकर जिसने माल भी, आल भी, जान भी सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया जिसने। जनाब सिद्दीक अकबर सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिस रात में हिजरत हुई है, सिद्दीक अकबर के वालिद उस वक्त तक मुसलमान नहीं बने थे। बड़ी उम्र का आदमी था, आंखों से भी माजूर था। सुबह सुबह आया, आके अपनी पोतियों से कहने लगा, बेटियों मैं तो मर गया रात भर फिक्र में, वो तो एक फुट्टी कौड़ी भी छोड़ के ना गया होगा। वो गया है अपने यार के साथ और पक्का है वो। तुम्हारा उसने कोई ख्याल नहीं किया होगा, तुम्हारा गुजर कैसे होगा। मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम मेरी पोतियां हो, तुम्हारा हाल क्या बनेगा। जनाब अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने सोचा कि दादा तो इस गम में मरेगा। हमारे घर की दीवार में खड्डा सा बना हुआ था जिसमें अब्बा रुपए पैसे रखा करता था। हमने वहां ठीकरे भरे, ऊपर कपड़ा डाला और दादा का हाथ पकड़ के फेर दिया कि नहीं नहीं दादा, इस मर्तबा तो कमाल कर दिया अब्बा जी ने, बड़ा ही माल छोड़ के गए। तो हज़रत अस्मा ने सिद्दीक अकबर के वालिद अपने दादा का हाथ जब पकड़ के फेरा ना, तवज्जो है
अबू कुहाफा कहता है, अबू बकर का वालिद यूं हाथ फेर के कहता है, तुम कह रही हो कि दौलत छोड़ गया, पैसे, चलो ठीक है तुम्हारा काम चल जाएगा, पर मेरा दिल नहीं मानता कि वो इतना कच्चा हो जाए इमामुल अंबिया के साथ और पीछे कौड़ी छोड़ जाए। दिल नहीं मानता। अरे लोगों, अगर जिब्रील को निकाल दो तो मेराज नहीं, सिद्दीक को निकाल दो तो हिजरत नहीं। नारे तकबीर, ताकत सिद्दीक, बड़ी चीजें हैं। जिब्रील ने सिदरतुल मुंतहा पे साथ छोड़ दिया, सिद्दीक ने आज तक साथ नहीं छोड़ा। जिब्रील वहां तक पहुंचा के आ गया, सिद्दीक आज भी नाल है, आज भी साथ है। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर खुमैनी नहीं, 1 करोड़ खुमैनी पैदा हो जाए, 1 करोड़ सब्बी पैदा हो जाए, जो अबू बकर सिद्दीक के साथ दुश्मनी करे, खुदा की कसम इमामुल अंबिया से सिद्दीक को अलग करना पूरी दुनिया की ताकत के बस की बात नहीं है। जिसको प्यार है उसने अपने पास बिठा रखा है, जिसको प्यार है वो बैठा है, तुझे क्या तकलीफ है? ज़ेरे दीवार खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं, किसी को देखकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तुझे तकलीफ हो रही है? तू कौन है एतराज करने वाला? जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हिजरत का हुक्म दे दिया। अर्ज किया, मेरे मौला ये मक्के वालों की अमानतों का क्या करूं? आटे हैं, जौ है, खजूरें हैं, कुछ पैसे हैं, कुछ कपड़ा है। फरमाया, मेरे महबूब मैंने सारे इंतजामात कर रखे हैं। ऐ शेरे खुदा, ऐ अली इधर आओ, ये मक्के वालों की अमानतें तेरे हवाले, मक्के वालों का आटा तेरे हवाले, मक्के वालों के पैसे तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों का कपड़ा तेरे हवाले, मेरे नबी का बिस्तर तेरे हवाले, मेरे नबी का हुजरा तेरे हवाले। अबू बकर मेरे महबूब की नबूवत वाली अमानत तेरे हवाले। और फिर अगर आप तवज्जो से बैठे हैं तो सारा जहान ये कहता आया, हुजूर के बिस्तर पे, सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के बिस्तर पे शेरे खुदा हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु सो गए। सारे कह दो, हुजूर के बिस्तर पे हजरत अली, हजरत अली हुजूर के बिस्तर पे, जोर से कहो, सो गए। किसी के बच्चे को पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं, नींद आती है? किसी के भाई को पुलिस पकड़ के ले जाए या कोई अगवा करके ले जाए, बहन को नींद आती है? माँ को नींद आती है? अब ये सारा जहान कहता है हजरत अली सो गए। गोया हजरत अली ने अपने अमल से ये साबित कर दिया कि आज की रात इतनी खतरनाक रात है, आज की रात इतनी खतरनाक रात है, इमामुल अंबिया के पीछे सारा मक्का लगा हुआ है। अगर बिलाल साथ होता तो खतरा था, सुहैल होता तो खतरा था, सलमान फारसी होता तो खतरा था। हजरत अली ने ये साबित कर दिया, अगर मैं साथ होता तो खतरा था, अब साथ क्योंकि अबू बकर है लिहाजा खतरा ही कोई नहीं। अली को नींद आ गई। किसी बात को भी खतरा हो, शेरे खुदा को नींद आ सकती है? इसीलिए तो नींद आ गई कि जब अबू बकर के घर पहुंच गए, फिर पूरी दुनिया एक तरफ और अल्लाह का भेजा हुआ सिद्दीक एक तरफ। अली को तो इतना इत्मीनान है कि नींद आ गई, और तू इतना बेचैन है कि अब तक दबड़क दबड़क करते फिरता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे से निकल
हुए अल्लाह से पूछा, या अल्लाह अब जाऊं कैसे, कहाँ जाऊं? हम सब लोगों का ये अकीदा है कि नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर लब कुशाई भी नहीं करता। नबी यूं कदम उठाकर जब तक खुदा इजाजत न दे जमीन पे नहीं रखता। मैं कहता हूं नबी सांस अंदर ले जाता है तो अल्लाह से पूछकर, बाहर लाता है तो अल्लाह से पूछकर। नबी ने पूछा, या अल्लाह रात तो बड़ी खतरनाक है, चारों तरफ ये मिले जुले खड़े हैं आपस में नंगी तलवारें लिए हुए, अब मैं जाऊं कैसे और जाऊं कहां? अल्लाह बड़ा बेनियाज है, सारे कहो अल्लाह। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। तुम भी बेनियाज मानते हो? लग रहे हो दिल से बहुत कम मानते हैं हम लोग। बेनियाज वो हो गए और हम कब्रें चाटते फिरे। ना किसी वली, किसी बुजुर्ग, किसी पीर फकीर के पास बैठ के ये दुआ मांगना, या अल्लाह साडा हजरत फौत हो जाए, हमारे हजरत साहब रुखसत हो जाए, थप्पड़ मारेगा तेरे खाना में चाट लगेगी, मरने पे कोई राजी नहीं। और जो 4 गज जमीन के अंदर चला गया तो उसको भी बेनियाज मानता है, जो एक सेकंड के लिए कभी सोया नहीं, तेरी हर वक्त परवरिश करता है, तुझे माँ के पेट से लेकर लहद तक पालता है, वो बेनियाज नहीं? अबू जहल आया और कहने लगा अपने चेलों से कि यहाँ एक खूह बनाओ और ऊपर काने रखो और मिट्टी डाल दो, जब वो नबी यहाँ से गुजरेंगे धड़ाम से गिरेंगे और तुम पथराव करना, खूब मारना। चला गया कहकर, इसलिए मैंने कहलवाया था अल्लाह बड़ा बेनियाज है। फिर खोपड़ी में खुजली उठी, वापस आया, कहने लगा ख्याल करना जब तुम पत्थर मारोगे ना, वो हम में से किसी का नाम लेगा, मैं फलाना हूं, छोड़ियो ना, छोड़ना नहीं, तुमने सदका जारिया जारी रखना है। जाके सो गया, आंख खुली, देख के तो आऊं, पहरेदार सो ना गए हो, ध्यान रहा नहीं कुआं कहां था, धड़ाम से गिरा और पत्थर बजने लगा। अल्लाह मारो मैं अमर इब्ने हशाम हूं। वो कहने लगा साडा चौधरी सही आखदा सी, दे मार मार खोपड़ी गंदी करके। बड़ा बेनियाज है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने अल्लाह मियां से पूछा, इलाही अब कहाँ जाऊं? अब आदाई मेरे महबूब, तेरी नबूवत का डंका मैंने 1,24,000 नबियों से बजवाया, पूरी दुनिया से बजवाया, पर तेरे साथ जो लगा हुआ है मेरे सिद्दीक के मर्तबे का भी लोगों को पता चल जाए। बिलाल तेरे दरवाजे पे आया, सुहैल तेरे दरवाजे पे आया, उस्मान तेरे दरवाजे पे आया, अमर इब्नुल आस तेरे दरवाजे पे आया। ओ काली कमली वाले, हिजरत वाली रात है, आज अबू बकर के दरवाजे पे खुद तशरीफ ले जाओ ताकि दुनिया को पता चले मकाम सिद्दीक क्या है। तशरीफ ले आए, दरवाजा खटखटाया, सिद्दीक अकबर नंगे पांव दौड़े हुए आए, देख के अर्ज किया, मुझे बुलाया होता हजरत, आपने क्यों तकलीफ फरमाई? फरमाया मैं खुद थोड़े लाया हूं, खुदा ने भेजा है। और मेरी एक और बात समझ लो, अगर तवज्जो है तो चलो, मेरी ना मानो, उलमा किराम की ना मानो, हजरत मौलाना मोहम्मद अली शाह साहब मद्दसिल्लुहु की ना मानो, अगर तू हमारी नहीं मानता तो उन्हीं की मान जा। मक्के वाले जब आए ना, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया इब्ने खलफ, सारे के सारे चौधरी जो आए तो हुजरा खाली। दुनिया जानती है कि ये मक्के की सारी सरदारों की, चौधरियों की पार्टी बिलाल के मकान पे न गई, सुहैल के मकान पे न गई, अबू दर गफारी के मकान पे न गई, सैयदना सलमान फारसी के मकान पे नहीं गई, फारूक आजम के मकान पे नहीं गई, किसी दरवाजे पे नहीं गई, किसी चौक पे नहीं गए, किसी गली में नहीं गए, सीधे सिद्दीक के दरवाजे पे आए। और मक्के वालों का भी अकीदा है कि नबी अगर अपने घर में नहीं तो सिद्दीक के यहाँ जरूर मिलेगा, इसलिए नबी और सिद्दीक
अल्लाह अल्लाह, वाह अबू बकर तेरी आल पे कुर्बान हो जाऊं। सरकार जब तशरीफ ले जाने लगे, सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा अबू बकर की छोटी सी बच्ची है, यूं रहमत वाला हाथ सर पे रखा, फरमाया अस्मा बताना नहीं, बताना नहीं हम किधर गए हैं। नहीं मेरे आका। दरवाजे पर दस्तक हुई, तशरीफ ले जाने के बाद वो पूरी पार्टी नहीं, पार्टा आ गया मक्के वालों का, पार्टा आ गया मक्के वालों का। और सैयदा अस्मा का तो इंतजार था ना, यूं आंखें मलती हुई बच्ची बाहर निकली। उन्होंने कहा काकी जी सही, तेरा अब्बा किथे है, थोड़ा नबी किथे है। आखिर लगी क्यों, तेरा मेरा बाल होवे हा या तेरी मेरी बहन धी होवे हा, तो कम अज कम इहो काम तो करे। मैं तो सुती पई हम, मैं को क्या पता, शाम को टुकर खाधा मैं लंबी थी गई हम, मैं को कुछ पता नहीं। घर आया को पूछो, अबू बकर तेरी औलाद गोल मोल बात की भी कायल नहीं। कहने लगी ओ मक्के वाला, मक्के के चादरिया तुम थोड़े हो, मक्के के सारे नौजवानों को बुला के लाओ, मक्के की सारी ताकत को जमा करो, मक्के वालों को इकट्ठा करो, और मेरा ये चैलेंज है, तुम अबू बकर की बेटी से काली कमली वाले का पता पूछ के दिखाओ। तुम इस अबू बकर को नहीं मानते, मैं तो कहता हूं इसकी औलाद के गुलामों के गुलाम बनो। अरे जिस घर की बच्चियों का ये आलम हो, उस घर के मर्दों का क्या हाल होगा। और ये बात बातों में खत्म नहीं हुई, तलक कलामी हुई। अस्मा ने जर्रा बराबर पहलू नहीं बदला, ये भी नहीं कहा कि सुबह बताऊंगी, कम से कम जान बचाकर अंदर जाके कुंडी लगा लेती। मैं अपनी अम्मी से पूछ के आती हूँ, इस बहाने से अंदर से कुंडी लगा लेती। मगर अस्मा जानती थी अगर मैंने कुंडी लगाई तो मेरे बाप पर कहीं लोग बुज़दिली का इल्जाम ना लगा दें। तुसा तो खिसक वेंदे हो ना, हाय हाय। इन्हीं लोगों के मानने वाले थे ये लोग। शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद शाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह खालिक दीन हाल कराची में तलब कर लिया गया। हजरत ने फतवा दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। ये जितने तुसा हजरात अखबार में पढ़ दो ना, फलाना सर फलाना सर फलाना सर, इन्हां दे सारी सर है नहीं, इन्हां दे पैर कोई नहीं, कल्लू कोई शा कोई नहीं। इन्हां सोजा को इनाम मिला अंग्रेज मेमा दे थूक चक्कण दा, अंग्रेजां दे घोड़ा दी लीड चक्कण दा ना। इन्हां कोई लकाब होई वेडे गन, ये उन्हां दे मामे लगदे ने। ग्वालियर के जेल खाने में से एक कैदी ने आजादी वतन का नारा लगाया था। हर तहरीक हमसे चली, रेशमी रुमाल की तहरीक हमने चलाई, खिलाफत की तहरीक हमने चलाई। शामली के मैदान में मौलाना दानौतवी ने माथे में गोली खाई ना। ये क्या किसी से मुकाबला करेंगे जो पहले ही अपने गले में फांसी लटकाए फिरते हैं। में टुकड़ी जी होती है ना, ये निशानी है अंग्रेज दी गुलामी दी। और बड़ा अजीब अंदाज से मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को तलब कर लिया गया कराची में। अफसर कहने लगा मौलाना क्या आपने ये बयान दिया है, क्या ये फतवा दिया है अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। मौलाना ने फरमाया फतवा दिया था, अब भी देता हूँ और यही फतवा देता रहूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मरहूम ने शेख मदनी के पैरों पे हाथ रख दिया और आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह हुसैन अहमद की खैर हो। जज कहने लगा मौलाना मालूम है इसकी क्या सजा है।
फरमाया सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। मैंने तो कुरान भी माल्टे की जेल में चक्की चलाते चलाते याद किया है। सजा दे, उसने कहा सजा फांसी है। अल्लाह, शेख मदनी ने बगल में से कपड़ा निकाल कर मेज पे रख दिया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लेके आया हूं। मैं कहा कफन तो आपको यहाँ भी गवर्नमेंट दे देती, फरमाया मैं अपने खुदा के यहाँ इंग्लिश गवर्नमेंट का कफन पहन के भी जाना पसंद नहीं करता। नारे तकबीर, और फरमाया मसाइब में उलझ कर, मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मुझे अपनी नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता, और निगाहें जिनकी पड़ जाती हो मुस्तकबिल के चेहरे पर, उन्हें माजी के अफसानों को दोहराना नहीं आता। मुझे कोई परवाह नहीं, सजा दो, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। खिलौना समझकर बर्बाद न करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। और शेख मदनी अदालत से निकलते हुए कहते हैं सरफराशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, लगा ले जोर जितना बाजुए कातिल में है। और हम बुज़दिलों की औलाद नहीं, हम छुपने वालों की औलाद नहीं, हम टुकड़ेलों की औलाद नहीं, हम हलवा चाट लोगों की औलाद नहीं। खुदा की कसम हम तो उन हीरों की औलाद है जिन्होंने पूरी दुनिया के कुफर का मुकाबला किया। मिर्जाई हमको यानी हर सरहद पे, मिर्जाई वाली सरहद पे हम लड़े, ईसाइयों की सरहद पे हम लड़े, सहाबा के दुश्मनों के मुकाबले में हम लड़े, आरियों के मुकाबले में हम लड़े, कुरान की तौहीन हुई हम लड़े, मुनकिरीन हदीस की ने तौहीन की तो हम लड़े। और खुदा की कसम हमारे सामने आए तौहीन करके दिखाए, इधर आ जालिम उधर आजमाए तो तीर आजमा हम जिधर आजमा। हम कोई मरे हुए लोगों की औलाद नहीं, हम तो उन बुजुर्गों की औलाद हैं। दिल्ली से लेकर पानीपत तक, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक, दिल्ली से लेकर मेरठ तक कोई दरख्त ऐसा नहीं, कोई टहनी ऐसी नहीं जिस पे किसी आलिम दीन की लाश न लटकी हो। और जिस टहनी से पूछा अरे क्या कमाया, आवादा लिए फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल, चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। दोस्तों बयान पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं कोई बयान के साथ। अल्लाह हाफिज़।